Good morning, dear students. In the last week's class, we have learned about the MS Office Access. In this, in that class, I have already told you that it is based on the RDPMS, that means Relational Database Management System. In this, we have to enter the data for our future use in a file, and we can save it for the further use. I can access that data in a meaningful and summarized manner for our any purpose in afterwards. So when you start the Microsoft Access, after the first introductory screen, when you start the next, click on the next option, you will get like this screen there. Here it is the main screen of the MS Access. So today I will tell you what are the different functions available on the introductory screen of the MS Access. So let us see. So see student, it is the screen of the MS Access when you start it. So what are the different functions available there? So first see this here in the left corner. Here some icons will be there, and this is known as the quick access toolbar, and after that you will get a file tab. Then after that, in the left hand side only, a blank row or some names may be there if there is any previous databases are saved in your computer. Then you will get the names of that database here. It is known as the navigation pane. Navigation pane. Then after that you will get at the bottom navigation button. Some buttons are displayed at the bottom of the screen on the left hand corner of your computer screen that are known as the navigation buttons. It is used to go to the previous screen or next screen. Now you can see this first, it is known as the title bar. Because you will get here the title of your file, that means the name what you are giving to save your file, that name will be displayed here, therefore it is known as the title bar. This portion at the right hand corner, it is known as the ribbon. You will get this ribbon option in the latest Windows versions. At the or if you are having the not the latest version, then you will not get this ribbon option there. And here if your table is saved, you will get here the roll number of the saved students, then the name of the student, then class, marks, all these things. It is known as, this area where you are working, it is known as the work area.
because you are working here, you are entering the marks, name, class and all these things here, therefore it is known as the work area. Dear students, now I have showed all the major functions of the MS Access and where their tools are located on your screen. All these things I have showed you with the help of the diagram, and the theoretical portion I will send you with the help of your PDF to you, that you can write in your fair copy. So बच्चों, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया है कि MS Access एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डाटाबेस मीन्स एक ऐसी फाइल या एक ऐसी जगह जहां आप आपका बहुत सारा डाटा सेव करके रख सकते हो आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। दैट मीन्स जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस डाटा का यूज़ करके आपको जो भी चीज़ें देखना हो आप देख सकते हैं। तो डाटाबेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है MS Access की। तो MS Access में डाटाबेस बनाने के लिए हमको क्या करना है? तो सबसे पहले जैसे आप MS Access खोलोगे और उसका फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो हियर लाइक दिस स्क्रीन यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड देयर। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, बट जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन जो होता है, आपका फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे माउस क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप माउस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ब्लैंक डाटाबेस फाइल एक खुल जाएगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपके फील्ड्स डालना पड़ेगा कि कौन कौन से फील्ड्स लेते हो। जो मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि फील्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले आपको फील्ड्स डालना पड़ेंगे। देखो बच्चों, जैसे यहाँ दिख रहा है फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, ये वहाँ पे आपको ऐसे डिस्प्ले होता रहेगा। आप जैसे इस पर माउस क्लिक करोगे ये आपसे फील्ड का नाम पूछेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट फील्ड लिया हमने रोल नंबर, देन उसके बाद सेकंड फील्ड लिया नेम, थर्ड फील्ड आपका जो भी आप ले सकते हो मदर नेम, फादर नेम और क्लास या मार्क्स जो भी ले सकते हो। ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप फील्ड का सिलेक्शन कर सकते हो। और आपको जितने फील्ड बनाना उतने सिलेक्ट करने के बाद आखिरी में एक ऑप्शन आता है क्रिएट। देन आपको उस पर क्लिक करना। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे एक आपकी ब्लैंक डाटाबेस बन जाएगी, जिनकी फील्ड हेडिंग जो जो आप वहाँ पे लोगे वो सब रहेगी। क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करोगे ब्लैंक डाटाबेस बन जाएगी। उसके बाद आपको उस फाइल को सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव कैसे करोगे? आप फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फाइल ऑप्शन जैसे ही करोगे उसका ड्रॉप डाउन मेनू में से सेव एज ऑप्शन आता है। सेव एज, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे नेम पूछेगा कि किस नेम से आपको सेव करना है आपका डाटाबेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दिया है ABCD। यहाँ पे हमने ABCD नाम से अगर फाइल सेव करके जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपकी फाइल जो भी आप नाम दोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ABCD दिया है उस नाम से आपकी फ़ाइल स्टोर हो जाएगी कंप्यूटर। सेव करने के बाद आपको उस फाइल को यदि क्लोज़ करना है तो हाउ टू क्लोज़ दैट फाइल। क्लोज़ करने के लिए भी आपको पहले फाइल मेनू में ही क्लिक करना है। फाइल मेनू पे जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ओपन के नीचे। फाइल के बाद जैसे एक दो ऑप्शन का ओपन ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे क्लोज़ नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे या एंटर करोगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। ये सारी बेसिक थिंग्स जो कि हमको फ़ाइल हैंडलिंग के लिए ज़रूरी थी, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि फ़ाइल कैसे बनाना है, कैसे क्लोज़ करना है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक फ़ाइल बना ली है, उसको सेव कर लिया, क्लोज़ कर लिया, उसमें फ़ील्ड भी सेव कर दिए, देन आपने एक दिन आपका प्रैक्टिकल हो गया है। देन नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो, आपको यदि उसी फाइल को यूज़ करना है फिर से, तो आप कैसे करोगे उसी फाइल को ओपन? तो आपको फाइल में जाना है। सबसे पहले फाइल में जैसे ही क्लिक करोगे उसके नीचे आएगा ओपन, तो यहाँ से आप ओपन डाटाबेस नाम का ऑप्शन जो रहेगा उस पर यदि आप क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स यानी कि एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें जितनी भी फाइल उस कंप्यूटर में MS एक्सेस की सेव है वो फाइलें डिस्प्ले होने लगेगी, उनके नाम डिस्प्ले होने लगेंगे। अब आपको यहाँ से आपकी जो भी फाइल है उसको पहचाना है, रिकॉग्नाइज करना है, और उस पर जाके जैसे ही आप क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल हमने फाइल ABCD नाम की सेव की थी, ABCD पे आप जैसे इसको क्लिक करते हो तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी और उसमें वो सारी चीज़ें सेव रहेगी जो आपने प्रीवियस सेशन में जो भी आपने उसमें सेव किया था, जो भी नाम लिखे थे, फाइल का स्ट्रक्चर बनाया था, डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया था, वो सारी चीज़ें उसमें सेव रहेगी और आप उसी को आगे कंटिन्यू करके उसी फाइल में वर्क कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि फ़ाइल कैसे बनाना है, उसको सेव कैसे करना है, उसमें फील्ड कैसे एंटर करना है, उस सब एंट्री करने का उसको सेव करके क्लोज़ करना है। और नेक्स्ट सेशन में यदि आपको उसी फाइल पर वर्क करना है तो आप उसको ओपन कैसे करोगे, अब उस फाइल में आपको और आगे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि MS Access is a relational database management system. So now you have to make 2 files. अब आपको 2 फाइल बनाना है, एक स्टूडेंट्स नाम की और जो दूसरी फाइल बनेगी वो है मार्क्स या परसेंटेज ले लो, परसेंट। ये 2 फाइल जो मैंने बताई है ये आपको MS Access पे बनानी है और इनमें फील्ड क्या क्या लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट फाइल में, स्टूडेंट फाइल में जो आप लोगे, रोल नंबर आपका पहला फील्ड होना चाहिए, रोल नंबर। देन सेकंड फील्ड स्टूडेंट नेम, इसको आप शॉर्ट में S नेम भी लिख सकते हो। देन फादर्स नेम, इसको भी आप F_ नेम यानी फादर नेम, इस नाम का फील्ड बना सकते हो और इसके लिए S_ नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज टू मेक द फील्ड। देन एड्रेस, एड्रेस के बाद आपको टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड द लास्ट फील्ड दैट इज DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। इतने फील्ड आपको स्टूडेंट नाम की जो फाइल आप बना रहे हो उसमें इंसर्ट करना है, यानी उसमें इतने फील्ड लेना है। अब एक फ़ाइल ये बनने के बाद आप इसको क्रिएट करेंगे, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल में भी बता दूंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगा कि इसको कैसे बनाना है। लेकिन आपको एक फ़ाइल बनाना है और एक एक फ़ाइल में यानी जो 2 फाइलें बनेगी उसमें पहली फ़ाइल जो स्टूडेंट फाइल है उसमें क्या क्या फील्ड लेना है ये मैंने आपको बता दिए, स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। देन सेकंड फाइल इसको आप बनाओ, इसको पूरा जो स्ट्रक्चर है डाटाबेस का ये बनाओ और उसको क्रिएट करके उसको सेव करके रख लो। देन सेकंड वाली जो आपकी है
उसमें क्या क्या फील्ड रहेंगे सेकंड फाइल में। तो फर्स्ट फील्ड रहेगा आपका रोल नंबर, देन सेकंड फील्ड रहेगा परसेंटेज, and the third field that is grade. Now see students, फर्स्ट फाइल के फील्ड क्या क्या थे। नाउ सेकंड फाइल के जो फील्ड है, फर्स्ट इज रोल नंबर, सेकंड इज परसेंट, थर्ड इज ग्रेड। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों फाइल के फील्ड में, यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट फील्ड लिया था रोल नंबर, और यहाँ पे भी जो सेकंड फाइल है उसमें भी फील्ड जो लिया है रोल नंबर ही लिया है। दैट मीन्स ये जो रोल नंबर वाला फील्ड है ये दोनों फाइल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, बिकॉज RDBMS का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग रहता है कि हाउ टू मेक द रिलेशन बिटवीन टू फाइल, सो देयर शुड बी वन कॉमन फील्ड। इन दोनों कॉमन फील्ड को हम प्राइमरी की भी बोलते हैं। सो देयर शुड बी एटलीस्ट वन कॉमन फील्ड इन 2 or more than 2, 3, 4 files, how many files you want to make the relation in between। उन सभी फाइलों में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, है ना। जैसे रोल नंबर इसमें, रोल नंबर इसमें थर्ड फाइल बनाते हो तो उसमें भी एक रोल नंबर नाम का फील्ड हो, और उसके अलावा आप जो भी फील्ड रखना चाहो वो रख सकते हो। बट रोल नंबर दैट मीन्स वन कॉमन फील्ड शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी फाइल, दोज हु वांट you to make the relation between the files। so इसके बाद आपको क्या करना है कि इन फाइलों में एटलीस्ट 20 रिकॉर्ड्स आपको एंटर करना है। ये फाइल बनाने के बाद आपको इसमें रिकॉर्ड्स की एंट्री करना है। रिकॉर्ड्स की एंट्री में आप आपके फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो, और फादर नेम और एड्रेस की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो उनका एक्चुअल एड्रेस हो वही लिखो, बट आपको हर चीज़ लिखना है। जब भी आप इनमें रिलेशन कैसे मेंटेन होगा ये आप देख पाओगे। तो आप ये दोनों फाइल को बनाना है आपको, और इससे कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल वीडियो में बता दूंगा। तो आपका ये हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस इन द MS एक्सेस, यहाँ तक का जो पोर्शन है यानी कि थर्ड चैप्टर ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद मैं आपको इसके एक्सरसाइज जो है वो PDF के थ्रू भेज दूँगा, जिसे आपको कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।